Yeah, I take guitar lessons, music lessons. yeah, Ryan Prabhu has been to India actually, and he has studied Krishna consciousness in India. Which place did you go? Um, in Vrindavan. Vrindavan, yes, he was in Vrindavan. So he's a very good Krishna Bhakta and he practices Krishna consciousness. He chants, he sings, so he's a very wonderful person. So, saying that, we will begin our today's glorification of Lord Sri Ramachandra. We will recite with the Mangalacharan prayer, invocation prayer, which are on the screen. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद एवरीबडी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे Hare. two more times everybody together krishna hare krishna 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 hare 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 rama ram ram hare 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 krishna 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 hare 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 rama ram ram hare 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 krishna. Thank you everyone. So we'll begin with the prayers offering to Lord Sri Ramachandra ji. So the prayers are on the screen, they are in Sanskrit. We all will recite together. लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी युग पानी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति भाऊं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठ वातात्मजं
वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बुद्धिहीनतनुजानके सुमिरो पवनकुमार बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो सब संतन की जय शिल प्रभुपाद की जय Hare Krishna. Thank you everyone for joining us today. So everybody knows about Lord Ramachandraji's pastime because Ramayana is very popular all over the world actually, not only in India but everywhere in the world. If you go to even Muslim countries like Bali, uh, is a Muslim country actually, but there Ramayana is the most popular, and they play Ramayana in various places. Their people's name also there in Bali is Ram, Lakshman, like that name. If you go to Singapore, there also the streets names are Ayodhya 1, Ayodhya 2, like that. So Ramayana is a which is a Mahakavya, which is the greatest poetry ever, and it is popular all over the world. Many people across the globe knows about Ramayana. Ramayana was originally composed by Maharishi Valmiki ji. Valmiki ji composed Ramayana, but then Ramayana was again ji composed was in संस्कृत लैंग्वेज वेरी डिफिकल्ट संस्कृत आज यहाँ भी बैठे काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं सब यहाँ पे एवरीबडी इज ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट but hardly few understand Sanskrit. Is that correct? Because Sanskrit is not being taught at all. Like initially people used to speak in Sanskrit, talk write in Sanskrit, but nowadays it's disappeared. So to ordinary people can understand, it is written in Avdi Bhasha by Sri Tulsidas Ji. And Lord Ramchandraji's pastimes are also described in this book called as Srimad Bhagavatam. Okay, so Srimad Bhagavatam is originally in Sanskrit, but as Tulsidas Ji translated Ramayana into local Avdi language. Similarly, Srila Prabhupada Ji did a great work, historical work, and translated all this Sanskrit into English. Because nowadays everybody speaks English. In India also, like all the children go to English medium school. Nobody goes to the regional language school. So everybody understands English better nowadays. So Srila Prabhupada did a great job and he translated this Srimad Bhagavatam from Sanskrit into English. So word by word translation. It's a great work by Srila Prabhupada. So in this, there is the Srimad Bhagavatam has total 12 books, 12 cantos, 12 cantos like this. You can see here. Here is the picture of those 12 cantos. So 12 12 खंड है श्रीमद् भागवतम के 12 कैंटोस और कुछ जो खंड है उसके दो तीन वॉल्यूम है जैसे कि 10th कैंटो हैज 3 वॉल्यूम्स लाइक दैट सो टोटल 18 बुक्स but 12 cantos or 12 khanda. So this book is all about conversation between two great personalities. Here on the asana, on the Vyasasana, person sitting is Shukdev Goswami, and the person on the ground sitting is a great king called as Parikshit Maharaj. So Parikshit was a grandson of Pandavas. Arjuna's son was Abhimanyu, and Abhimanyu's son is Parikshit. So, and then here, all these people sitting in front of them are the great personalities. You can see here, I'll show you with the arrow here. So here, the person sitting here is one with the veena. कौन जानता है इनको?
नारद मुनि है, करेक्ट करेक्ट, ये नारद मुनि बैठे यहाँ पे, और उनके बाजू में जो बैठे हैं नेक्स्ट टू हिम इज वेद व्यास जी. He is the one who composed this Srimad Bhagavatam, but he is listening himself from his son. So Ved Vyasji's son is Shukdev Goswami, and Shukdev Goswami is reciting this whole Bhagavatam Katha to Parikshit Maharaj. Now the Parikshit Maharaj has been cursed by Brahmana Shringi that he will die within 7 days. So Parikshit Maharaj has a deadline now, real deadline. We all have a project deadline, but he has a deadline. What is that? That in 7 days he's going to die. So he's thinking now, what should I do if I'm going to die very soon? Hmm? So he approaches all the saintly personalities, and then all of them, all the saintly personalities, they recommend that you should approach this great personality whose name is Shukdev Goswami, and he's the one who can guide you. So then Shukdev Goswami says that if your death is very near, then one should not do anything else. Only remember Krishna, and only remember the name of God, because that is the only option left, right? So then Parikshit Maharaj listens 7 days and 7 nights. No lunch break, no coffee break, no tea break, no breaks, like no sleep time, nothing. Whole day and night they sit together in Hastinapur. Hastinapur मालूम है आपको कहाँ पे है? Anybody knows Hastinapur? Hastinapur is current Delhi. It's called Hastinapur. It used to call Hastinapur because there were lots of elephants that time. Hasti means elephant, and hundreds of elephants were there, so that is why it was called Hastinapur. So there is a river there, Ganga river, Yamuna river, sorry, and by the Yamuna they were sitting and they were reading these pastimes of Lord. So in this, uh, Parikshit Maharaj asked various questions and Shukdev Goswami is answering the questions. तो उसमें एक कथा आती है भगवान रामचंद्र जी की. तो इसका जो नाइन्थ कैंटो है, नाइन्थ कैंटो ऑफ दिस हैज अ वंडरफुल पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड श्री रामचंद्र. तो हम कुछ उसमें से कथा आज भगवान के बारे में सुनेंगे. सो विजयादशमी, एज ऑल ऑफ अस नो, दैट इट इज द डे व्हेन लॉर्ड रामचंद्र जी killed the person with the 10 heads, Ravana. So today what we'll do is we'll learn something about Ravana, what is importance of today, and we'll also learn something about Lord Sri Ramachandra ji. Is that okay? Everybody okay? Huh? सब लोग? Do you want to know about this, or आप जानना चाहेंगे भगवान के बारे में? हाँ? आइए तो हम एक श्लोक से शुरू करते हैं. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू सिट स्ट्रेट. सब लोग स्ट्रेट बैठिए, नेक इन द लाइन विद द बैक. इफ यू रिमेंबर दिस मंत्रा, दैट्स गुड. देन क्लोज योर आईज एंड फोकस ऑन द साउंड वाइब्रेशन, एंड देन you repeat after me, okay? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी. इंद्राज श्रीमद् भागवतम की जय. So Srimad Bhagavatam has various pastimes of Lord's various incarnations. भगवान के अनेक अवतार हैं, जैसे कि मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वरा अवतार, नरसिम्हा, वामन, परशुराम जी, एंड देन भगवान रामचंद्र. फिर बलराम जी आते हैं,
फिर कल की अवतार, उसके बीच में बुद्ध अवतार, ऐसे भगवान के अनेक अवतार। एवरीबडी नोस डिफरेंट इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड, नाम तो मालूम रहेंगे शायद आप सबको, है ना। सो व्हेन वी हियर दिस डिफरेंट पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड, व्हाट हैपेंस, भगवान की कथाएं सुनने से क्या फायदा होता है? तो हमारे हृदय में जितना भी मैल है, वट एवर द डर्ट इज इन देयर अवर हार्ट, इट गेट्स क्लीन्ड। इट इज लाइक अ क्लीनिंग प्रोसेस। कथा जब हमारे कान से हृदय में जाती है, व्हेन वी हियर द लास्ट भगवान के पास टाइम, so it cleans our heart, and that is why it is very important to read and hear about various pastimes of the Lord. All the festivals in Bharatvarsha, in India, they are around the pastimes of Lord. जैसे कि दशहरा है तो भगवान राम की कथा है, दिवाली है, दिवाली किसके लिए मनाते हैं, कौन बताएगा? हाँ, भगवान राम वापस अयोध्या आए तो दिवाली बनती है ना। और फिर होली बनती है, फिर अनेक फेस्टिवल जो भी है, जैसे कि नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है, तो इसमें भी सभी जगह एवरीवेयर वी ग्लोरीफाई लॉर्ड। सो ऑल द फेस्टिविटीज इन इंडिया, दे आर centered around God. Is that right or wrong? Right? But now what has happened is that we have taken the God out of those festivities and make it a social gatherings. Is that right? दिवाली यानी मिठाई वाले का बिजनेस हो गया है, फटाके वाले का बिजनेस हो गया है दिवाली। इज दैट राइट? देयर इज नो गॉड लेफ्ट। इज दैट राइट और रॉन्ग, और एम आई एग्जैगरेटिंग? देयर इज नो गॉड लेफ्ट इन द फेस्टिविटीज। इट्स ऑल business now. Marketing, all the ads are rotating around the market, right? But the purpose of all the festival is that we incorporate God in our life, Krishna in our life, and try to remember on that particular day. Especially we remember every day, but on that particular day we special time of remembrance of God. So as I said that Parikshit Maharaj is hearing and inquiring from Shukdev Goswami about various pastimes of the Lord. And it is our duty as a human being. Parikshit Maharaj was the king, emperor. We are not even 1% of that, right? So it is very important for us to be, Parikshit being humble, he's sitting there on the ground and inquiring from Shukdev Goswami. It's the humility of a king, right? Otherwise, king can order him to come to his palace. But here Parikshit is approaching him and sitting on the floor, and the sadhu is sitting on the asana, right? So that is the humility. So now Parikshit Maharaj is asking Shukdev Goswami, please tell us about various pastimes of the Lord. And one of the pastime is Lord Sri Ramachandraji's pastimes. So we'll revise some of these pastimes. So Shukdev Goswami is saying to Parikshit Maharaj. So it starts with, here is the shloka on the screen. Will you like to repeat after me in Sanskrit? Yeah, आप लोग repeat करेंगे मेरे पीछे? Okay, so let's do it. So you can repeat after me. Shri Shuka Vacha. Shri Shuka Uvacha. Shuka means Shukdev Goswami. So Shri Shuka Uvacha. When Parikshit Maharaj asked the question, can you tell me about something about Lord Ramachandra ji? So Shukdev Goswami is saying about Lord Ramachandra. तो भगवान रामचंद्र जी का इतिहास बता रहे हैं कि रामचंद्र जी कौन है। ऐसे तो हमें मालूम है कि भगवान रामचंद्र जी दशरथ महाराज के पुत्र हैं, लेकिन उनका इतिहास कहाँ से परंपरा आती है, तो ये श्लोक में वो सब बताया गया है। सो हियर इज द श्लोका, यू कैन रिपीट आफ्टर मी। खट्वांगात् दीर्घबाहुश्च रघुस् तस्मात् पृथु श्रवः अजस् ततो महाराजास् तस्मात् दशरथो भवात्। So the whole shloka I will recite for the benefit of all of us. Shri Shuka Vacha Khattavanga Dirghabahuscha Ragustasmat Pruthu Ajastato Maharajas Tasmat Dasharatho Bhavat. So Shukdev Goswami said
The son of Maharaj Khatanga was Dirghabahu, and his son was celebrated Maharaj Raghu. From Maharaj Raghu came Aja, and from Aja was born great personality Maharaj Dashrath. ये महाराज भगवान रामचंद्र जी की परंपरा। तो इसे हम रामचंद्र जी को एक नाम कहते हैं रघुवीर, है ना, रामचंद्र रघुवीर, रामचंद्र रघुवीर, रघुवीर. So this name of Ramachandra as Raghuveer because one of his ancestors, his name was Raghu. हम कहते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. बोलिए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. बोले बोले बोले. पतित पावन सीताराम. सीताराम सीताराम पतित पावन सीताराम. क्लैप. पतित पावन सीताराम. सीताराम सीताराम भजमन प्यारे सीताराम. बोले बोल बोलिए. राम सीताराम भजमन प्यारे सीताराम. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. जय रघुनंदन जय सिया राम. जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम. जय रघुनंदन जय सिया राम. जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम. बोले बोले. जय रघुनंदन जय सिया राम. जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम. जय सिया राम. जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम. श्रीपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. बोले बोले बोले. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. सीताराम सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम. सीताराम सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. बोले बोले. रघुपति राघव पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो ये श्लोक में बताया गया है कि भगवान को रघु क्यों कहते हैं, रघुपति राघव, राघव रघु, रघुपति क्यों कहते हैं भगवान को? क्योंकि उनके कुल में पूर्वज एक हो गए, उनका नाम था रघु, राजा थे। महाराज खटवंग उनके कुल में हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, और रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, और दशरथ महाराज के पुत्र हुए भगवान रामचंद्र। सो हियर महाराज रामचंद्र इज नोन आफ्टर द great king Raghu. You see, personality of Godhead is known after somebody who appeared in his foot. What does that mean? That if you are great by your work, people will remember you forever. Raghu, he was not God. He was an ordinary king. But he was great by his character. And that is why still we call Lord Ramachandra ji as Raghava. तो आपका कार्य इतना महान होना चाहिए कि आपकी आने वाली जनरेशन भी आपके नाम को जानते रहे। आज रघु महाराज का नाम हमेशा अमर हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनका नाम धारण कर लिया। जैसे भगवान कृष्ण, इनका नाम तो सब जानते हैं, एवरीबडी नोज कृष्ण। कृष्ण भगवान का एक नाम है पार्थ सारथी। क्यों पार्थ सारथी है? अर्जुन का रथ चलाया, अर्जुन फेमस हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान की शरणागति में चले गए। सो हियर वी कैन सी दैट द ग्रेट पर्सनैलिटीज आर रिमेंबर्ड बाय देयर वर्क। सो हियर द हिस्ट्री ऑफ महाराज भगवान रामचंद्र जी's life is mentioned here. Then further Shukdev Goswami says to Parikshit Maharaj, तस्यापि भगवान् साक्षात् ब्रह्मयो हरि अंशाशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थिर्सुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञ. So here further Shukdev Goswami says to Parikshit Maharaj, being prayed by the demigods, the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth Himself, appeared with expansions and expansions of expansions. And their holy names are Ram, Lakshman, Bharat and Shatrughna. These celebrated incarnations appeared in the four forms as the sons of Maharaj Dashrath. So, the meaning of this shloka is that Ramachandra ji along with Lakshman, Bharat and Shatrughna, they are all incarnations of Lord Vishnu. जैसे हम भगवान रामचंद्र जी को तो विष्णु मानते ही है, लेकिन ये लक्ष्मण है, भरत है और ये शत्रुघ्न है, ये भी भगवान विष्णु के ही अवतार है। ये कोई साधारण जीव नहीं है ना। जैसे दो तत्व रहते हैं, एक जीव तत्व और एक है विष्णु तत्व। तो जीव तत्व और विष्णु तत्व में क्या फर्क है? The difference between living entities and the God. श्री श्री गौनिताय की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री राधा व्रजवत्सल की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्री गिरिराज भरण की जय, श्रील प्रभुपाद की। So here in this shloka Shukdev Goswami is saying that Lord Ramchandra ji is Bhagwan. The difference between Bhagwan and the ordinary human being, even though Lord appears as good as us, भगवान को भी दो हाथ है, हमारे भी दो हाथ है, हमारे जैसे ही दिखते हैं, मनुष्य रूप में आते हैं ना भगवान। When Lord comes as a human being, He appears just like you and me, but He is not like you and me. भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं in the human form, He is not a human actually. He takes the human form. Why? Because He wants to perform certain pastimes. He wants to deliver His devotees. Paritranaya sadhunam. Sadhu यानी
devotee, to help his devotees. Vinashaya cha dushkritam, to destroy the miscreants, and dharma sansthapanarthaya sambhavami. So Lord comes as human beings, like he came as himself as Lord Krishna, as Lord Ramachandraji, as Lord Parshuram, and various other incarnations like Vaman Avatar. भगवान मनुष्य रूप में आते हैं क्योंकि कोई विशेष कार्य उनको करना है, लेकिन वो मनुष्य नहीं है. जैसे कि भगवान यहाँ पे देख सकते हो, रामचंद्र जी, when Lord went into the forest in the exile, how many years Lord went to the forest? 14 years. Why did he go to the forest? Why did Lord Ram go to the forest, Risha? You know the story? Huh? To kill Ravana, yes. But what was the pastime? What was the boon? Who asked the boon? Kaikai asked the boon from Maharaj Dashrath. And what was the boon? Bharat becomes the king and Ram goes to the forest. So Lord Ramachandra ji went to the forest. Now when Ramji went to the forest, Mata Sita and Lakshmana accompanied with them. And then all of us, we know the story that Suryanpanka came, and then Lord Ramchandra ji cut her nose, and then she goes and reports to Ravana, and then Ravana gets attracted by the description of beauty of Sita, and then he abducts the Sita. Right? This is the short story. But here you can see in the forest, Lord Ramachandra ji is going in the forest and he's searching for Sita, and he's asking all the trees, he's asking the animals, he's asking the Hanuman, he's asking the Sugriva, he's asking the Jatayu, have you seen Sita? Have you seen Sita? Have you seen Sita? And Ramji also crying because he is separated from Mata Sita. Now does that appear like a god? It does not appear like a god. Why would God cry? If Lord Rama is God, why would he cry being separated from Sita? Is that right? Some people may ask this question. Or why would he take help of the monkeys to find the Sita? If he is God himself, he could do everything by himself. Right? Yes or no? So he appears in the form of a human, and then some people, they mistake him as an ordinary person. Because he has appeared as a human, he has to act like a human. That is why otherwise he could do it. For Lord Rama to kill Ravana, one earthquake is enough. 1 million Ravana can be killed in 1 second. Is that right? भगवान एक सुदर्शन भी चलाएंगे तो रावण तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा. भगवान को लंका जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन भगवान क्यों गए? सब ये तपस्या क्यों की भगवान ने? क्योंकि भगवान के अनेक भक्त जंगल में थे जिनका उद्धार करना था भगवान को. सब भगवान की राह देख रहे. जैसे शबरी भगवान की हजारों साल से राह देख रही, भगवान आएंगे मेरे घर, है ना. जैसे हनुमान जी भगवान के परम भक्त हैं, भगवान की राह देख रहे थे. तो ये सभी का उद्धार करना था. जटायु भगवान का भक्त था, उसका भी उद्धार करना था. तो भगवान के अनेक भक्त थे जिनका उद्धार करना था, इसलिए भगवान परित्राणाय साधुनाम. तो साधारण मनुष्य के जैसे ही व्यवहार करते हैं भगवान, लेकिन अपनी लीला के द्वारा अपने भक्तों का उद्धार करते हैं. भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूता महेश्वरम. भगवान कहते हैं मूढ़ा मीन्स fools. Lord Krishna says that when I come in the human form, the people who have less intelligence, they think that I am an ordinary person. Avajananti mama mudha manushim tanumashritam. When Lord comes as a human form, people think that he is an ordinary person like you and me. Like Duryodhan क्या जान बैठा? ये तो ग्वाला है, ये क्या करेगा? He is an ordinary coward boy. What he will do? So when Arjun and Duryodhan went to Lord Krishna
And Krishna said, you have two choices. First choice is, you can choose me, but I'm not going to take any weapon in the war. And second is, you can choose my Narayani Sena. Right? So first choice was given to Arjuna. Arjun, what would you like to have? Because you are younger and I saw you the first. So you choose whatever you like. What did Arjun choose? Arjun said, I want Krishna. Why? Because Arjuna knew that Krishna is not an ordinary person. He is Bhagavan Swayam. Krishnastu Bhagavan Swayam. देखिए कौरवों के साइड में तो बहुत सारे योद्धा थे. कौन कौन था कौरवों के साइड में? भीष्म पितामह एक ही काफी थे, क्योंकि उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था. He had a boon that he will not die at all. He will die when he wants. So he was like a Amar as long as he wants. Then there was Dronacharya, then Kripacharya, then Karna, Ashwatthama. Great, great fighters. Pandavas, Bhim and Arjun, that's it. Very limited power. Is that right? But ultimately the victory was Pandavas. When Ramji fought war with Ravana, who was there in the army of Lord Ramchandraji? Only monkeys. Only monkeys. Nobody else. And then some bears. Nobody else. Jamban. Nobody else. Ravan, all the Sena of Ravan, they were using the weapons. रावण की जो सेना थी उनके पास तो सब हथियार थे, और राम जी की सेना में ओनली राम और लक्ष्मण हैड वेपन. धनुष्य किनके पास था? बंदर को तो धनुष्य चलाना आता ही नहीं है, कहां से चलाएगा? तो बंदर किससे फाइट कर रहे थे? पत्थर लेके पत्थर डाल रहे थे बस, बाकी कुछ नहीं. और विजय किसकी हुई? हु वाज द विक्टोरियस? राम जी वाज विक्टोरियस. So the meaning of the shloka here is that if you think a Lord is an ordinary person because he's come in the human form, then you are making a big mistake. Like Duryodhana made a big mistake. What was the Duryodhana's mistake? Neglecting Krishna, because he just like he appeared like ordinary person, right? So he was killed. Ravana made the same mistake, thinking Ramchandra ji as an ordinary human being. So he abducted Mata Sita. So here it says, Avajananti Mama Muda. Muda means fools. Those who do not understand anything about Krishna, they think that he is an ordinary person. Manushim tanu ashritam param bhavam ajananto mama bhuta maheshwaram. So Maheshwar yani one who is the owner of all the universe. Maha Ishwara, Maheshwara. So when Lord Ramchandra ji was going through the forest, he was asking everybody, where is Sita? Where is Sita? Have you seen Sita? And at that time, he meets Jatayu, right? And Jatayu was killed by Ravana. Now Jatayu was very old vulture. His brother was Sampati. And Jatayu was a great friend of Maharaj Dashrath, who is father of Lord Ramachandra ji. So when Jatayu came to know that Ravan is abducting Mata Sita, he tried to prevent him from abduction. And that time Ravana cut the wings of Jatayu with his sword. And Lord Ramchandra ji performed his final rites, funeral. Now I have a question for all of you. Jatayu was killed by whom? And when Ramji was in the forest, there was a deer who was nothing but Marich. You know, Marich took the form of deer. And who killed that Marich? भगवान राम ने बाण चलाया ना मारिच को तो मारने के लिए, है ना? देखिए मारिच को भगवान ने मारा और जटायु को किसने मारा? रावण ने. किसकी मृत्यु ज्यादा सफल रही बताइए, कौन बताएगा?
किसकी मृत्यु ज़्यादा सफल है, मारीच की या जटायु की? बताइए, कौन बताएगा? आपका क्या कहना है? मारीच कह रहे हैं। अच्छा, और कौन कौन है बताइए। देखिए, दो मृत्यु हुई है। एक की मृत्यु रावण के साथ हुई, हाथ से हुई है, और एक की मृत्यु भगवान के राम से हाथ से हुई है। एक की मृत्यु हो रही है तब भगवान उसका फ्यूनरल कर रहे हैं। एक की मृत्यु हुई है भगवान का कार्य करते करते, और एक की मृत्यु हुई है रावण का कार्य करते करते। किसकी मृत्यु ज्यादा सफल हुई? जटायु की। क्यों? भगवान का कार्य करते करते मृत्यु, भले मृत्यु किसी से भी हो गई, लेकिन कार्य किसका कर रहे थे? भगवान का। और मरीच किसका कार्य कर रहा था? रावण का। तो किसका उद्धार हुआ? जटायु का उद्धार हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मृत्यु थंडरवे में भी हो जाए या वृंदावन में भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है। अगर वृंदावन में आपकी मृत्यु होती है और आपका मन पैसे में लगा है, फेल। लेकिन अगर आपकी मृत्यु थंडरवे में होती है और भगवान में मन लगा है, तो आप भगवान के धाम पहुंच जाएंगे 100%, है ना? तो जहां मन लगा वहीं वृंदावन। यस और नो? तो जटायु का मन कहाँ लगा था? भगवान की सेवा में लगा था कि कुछ भी हो जाए, भले मृत्यु हो जाए, भगवान की सेवा करूंगा। नहीं तो वो तो बुढ़ा था आदमी, सिक्स। हाँ, तो वो सोचता था कि जाने दो, सीता को लेके जाना, मेरे को क्या करना है। कर सकता था ऐसा, लेकिन नहीं किया। इज दैट राइट और रॉन्ग? So Jatayu died serving Lord Ramachandra ji. That is why his death is glorified, and Lord Ram performed his funeral as the father performs the funeral for, as the son performs funeral for the father. Other way around, because Jatayu was friend of Dashrath. Is that right? You understand the meaning of all this thing? So Ramayana has lots of messages. What is the first message we got? Never think that Lord is an ordinary person. Right? It's very wrong to think. Then, when our life is all for serving Lord Ram, Hanumanji was also a monkey, but he is glorified because he spent his whole life for serving Lord Ram. Hanumanji is always known by Ramaduta. When Ravana, हनुमान जी गए थे लंका, फिर पूरी लंका जलाई, फिर उसके पहले रावण ने बुलाया उनको अशोक वाटिका में से पकड़ के लाए, और रावण के सामने खड़ा कर दिया हनुमान जी को, पूछा कि कौन हो तुम, तो आपका नाम बताइए। तो ऐसा नहीं कहा मेरा नाम हनुमान है, कहा क्या क्या कहा? रामदूत अतुलित बल, मेरा नाम रामदूत है। बोलिए क्या कहना है, मैं राम जी का दूत हूँ। खुद का नाम कभी नहीं बताते थे, हमेशा भगवान के नाम से ही जाने जाते थे। तो अपने जीवन का ध्येय है वो भगवान की सेवा करना, भगवान को याद रखना। भगवान रामचंद्र जी, दिस इज अ नासा पिक्चर एक्चुअली, सैटेलाइट पिक्चर। सम पीपल कॉल दिस एज अ, भगवान रामचंद्र जी को माइथोलॉजी कहते हैं। सम पीपल से दैट राम वाज इज अ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, देयर इज नोबडी लाइक राम। इनको कहते हैं मॉडर्न रावण, दिस आर मॉडर्न रावणस। Ravana never accepted Lord Ram as a god. And the modern people also, who are modern Ravanas, they don't think that Lord Ram was God or is a god. They don't think that, they think that Ramayana is a mythology. Mythology means like factual, there is nothing factual, it's all historic, what is it they call? Fiction. So they call it fiction, but this is a satellite picture. You can see here in Ramayana, we have a Rama Setu. This is exactly between India and Sri Lanka, that bridge. And then there are many documentaries on this on the YouTube. You can Google and search about it. Now NASA call this as the Adams Bridge. क्या कहते हैं? और हम क्या कहते हैं? राम सेतु। और एक ही सेतु है पूरी दुनिया में जो ऐसा जोड़ता है, जिसका वर्णन आपको रामायण में मिलेगा।
And NASA people, when you read the documentary here, see the documentary, they talk about that this is not an ordinary bridge. It is not created by a natural process. It is created by people. Now, somebody may ask question that if Lord Ramji himself is a god, then why he had to create the bridge? He could have gone directly to Lanka. What is the point in creating the bridge? But by creating the bridge, Lord Ramji gave opportunity to serve all the monkeys. Everybody who wanted to serve Lord Ramchandra ji, Lord Ramji is kind enough to give opportunity to all of us. So, if Ramji wants, he could kill the Ravana in a fraction of a second. But he wanted all the Vanaras to fight for him, and they get the glories. Lord Krishna told Arjuna in the Mahabharata Yuddha, Lord Krishna told Arjuna that, hey Arjun, nobody is going alive from here. Everybody is going to die. यहाँ से युद्ध में कोई जीवित 5 पांडव छोड़ के कोई जीवित वापस नहीं जा रहा है. अगर आप इनको नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा इनको. लेकिन यहाँ से कोई जीवित वापस नहीं जा रहा है. लेकिन आप क्या बनिए, निमित्त मात्र बन जाइए, है ना, तो फिर आपका जीवन सफल हो जाएगा. तो भगवान कहते हैं निमित्त मात्र भव भव्य सची. आप सिर्फ निमित्त मात्र बन के इनका विनाश करिए. तो हम देख सकते हैं कि भगवान बहुत सारे असाधारण कार्य करते हैं अपने जीवन में. जैसे कि भगवान ने राम सेतु बनाया. टू मेक दिस ब्रिज इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इवन फॉर द मॉडर्न इंजीनियर्स. इट्स अ लॉन्ग ब्रिज, hundreds of miles long bridge. It's not possible. Similarly, in Krishna Katha also, आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, है ना? Is that right? तो कुछ लोग उसको भी माइथोलॉजी कहते हैं. भगवान ने ब्रिज बनाया, उसको भी माइथोलॉजी कहेंगे. गोवर्धन उठाया, उसको भी माइथोलॉजी कहेंगे. लेकिन आज की तारीख में भी गोवर्धन वहां पे है. आप जाके दर्शन कर सकते हैं गोवर्धन पर्वत का. With the blessings of Lord, all these various planets are also floating. हाँ, कितने सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, कोई डोरी से लगाया हुआ है? नहीं ना. पृथ्वी को कोई, is there any thread holding the earth? Is there any thread holding the moon, sun, all the different planetary systems? All these planets are floating. For God to float the planets is possible. For him to float a stone is like a small thing, right? So Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Janma karma cha me divyam yo me veti tatvatah tyatva deha punarjanma naiti mameti so Arjuna. दिव्यम, दिव्यम यानी अलौकिक. भगवान के जो कार्य है वो अलौकिक है. यानी क्या? तो आप साधारण इंद्रिय से समझ नहीं पाएंगे भगवान के कार्य को. अगर भगवान के कार्य को समझना है तो क्या चाहिए? जैसे कोई डॉक्टर है, somebody is a doctor, somebody is PhD, somebody is a great scientist, इंजीनियर, वो लोग भगवान को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भगवान को समझने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है. कोई साधारण अनपढ़ आदमी है लेकिन वो भगवान को समझ पाएगा. क्यों? क्योंकि भगवान को समझने के लिए क्या चाहिए? भाव. यू नीड द लव टू अंडरस्टैंड कृष्ण. कृष्ण कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय degree or material qualifications. Is that okay? Yeah. So Lord Krishna says, Janma karma cha me divyam yo me veti tatvatah. दिव्यम यानी कि कोई साधारण भगवान को समझना ये बहुत बड़ी गलती है. तो देखिए, भगवान जब राम सेतु बना रहे थे तो सब पर पत्थर जो थे वो तैर रहे थे, है ना. आप भी अगर आज भी आप जाएंगे वहाँ कन्याकुमारी के पास, तो वहाँ पे आपको कुछ पत्थर मिलेंगे जो आज भी तैरते हैं वहाँ पे. मैं गया था, आई हैव सीन दो स्टोन्स फ्लोटिंग. तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि भगवान कहते हैं मया दक्ष न प्रकृति सूयते सा चराचर. ये प्रकृति की जो नियम है उसको कौन बनाता है? भगवान ही बनाते हैं ना. इज दैट राइट और रॉन्ग? जैसे एक नियम है कि जो भी चीज ऊपर डालो वो नीचे आती है, उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटी, है ना. एनीथिंग यू थ्रो अप विल कम बैक. दिस कॉल्ड ग्रेविटेशनल पुल.
But Krishna can change this law. Krishna can make it sustaining for any number of times. Like any stone you throw in the water has to go down. But Krishna changed the rule. भगवान ने रामचंद्र जी ने अपना नियम बदल दिया, कहा कि नहीं, स्टोन अभी फ्लोट करेंगे. तो भगवान चाहे वो कर सकते हैं. एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर कृष्णा. जैसे कि हमारे श्रील प्रभुपाद जी, ही केम टू अमेरिका व्हेन ही वाज 65 years of age and he had only 40 rupees in his pocket, $7 at that particular time. So old man, retired age, with 40 rupees came to America, knowing only one person in America. वो आदमी क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका घूम के वापस जा सकता है इंडिया, है ना. In less than 14 years, Srila Prabhupada ji established 108 temples across the globe. कितने? 14 साल में 108 मंदिर. ये तो छोटा मंदिर है, इससे भी बड़े बड़े मंदिर प्रभुपाद जी ने बनाए 14 साल में. 108 मंदिर और 10,000 से ज़्यादा अमेरिकन्स, रशियंस, चाइनीज, Africans, Canadians, people got surrendered to Krishna. Now this is not an ordinary work. Is that right? This is not the time when there is internet, there is Wi-Fi connection everywhere, hotspots, you can viral a message. This was in 1960s when there was no electronic media. So Srila Prabhupada ji used to type the books, he used to print the books, he used to distribute the books by himself. तो भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं. ये प्रभुपाद जी के जीवन से आप देख सकते हैं कि एन ओल्ड मैन इन हिज रिटायर्ड एज, फॉर अस टू पे अ मॉर्गेज टेक्स हाउ मेनी इयर्स? 25 years to just one mortgage. प्रभुपाद जी बिल्ड 108 in 14 years. और एक जगह नहीं, अमेरिका में 25 मंदिर, कनाडा में 10 मंदिर, ऑस्ट्रेलिया में 10-12 मंदिर, न्यूजीलैंड में कुछ मंदिर, भारतवर्ष में तो बहुत सारे मंदिर बना दिए. ये कैसे पॉसिबल हो गया? और ये भी छोटे मोटे मंदिर नहीं है. जैसे आप वृंदावन में जाएंगे तो मंदिर का जगह ही 50 एकड़ का है, मायापुर में जाएंगे तो 300 एकड़ का जगह है. आप सोच के चक्कर आ जाएगा कि ऐसा कैसे बूढ़ा आदमी कैसे कर सकता है. लेकिन जब भगवान जब चाहते हैं तो कुछ भी हो सकता है ना. तो ऐसा है यहाँ पे कि when Krishna wanted, when Lord Ramachandra ji wanted, the stone started floating. There is nothing impossible for Krishna. So if you have a faith, then Krishna will interfere in your life. अगर आपको श्रद्धा ही नहीं है तो भगवान कहेंगे ठीक है, आप अपना कार्य करो, मैं अपना कार्य करता हूँ. लेकिन अगर आपको भगवान में पूरी श्रद्धा है तो भगवान आपको उठाएंगे हाथ से. वो कहते हैं कि आप अगर आप भगवान के नाम में, क्या कहा मैंने? अगर आप भगवान के नाम में तो भगवान आपके काम में. क्या बोला? अगर आप भगवान के नाम में तो भगवान आपके, अगर आप अपने काम में तो भगवान अपने धाम में. अगर आप कहेंगे कि मैं बहुत बिजी हूँ, किसी को पूछो, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हम लोगों को कहते हैं कि आप भगवद गीता सुनने को आते हैं, you come for Bhagavad Gita class. So what is the first excuse people will tell? बहुत बिजी हूँ. फिर दूसरा एक्सक्यूज बताइए, आप बताइए, एक्सक्यूज क्या हो सकता है? बहुत बिजी है एक एक्सक्यूज. दूसरा स्टडी है. हाँ, हरे कृष्ण. तीसरा एक्सक्यूज बताइए, एक एक्सक्यूज बताइए. जैसे कि कोई आपको बोले कि आज भगवद गीता क्लास है और आपको आना है, तो आप क्या कहेंगे? आप बताइए. गोप्स, काम है, बहुत बिजी हो. जैसे आप बताइए, एक एक्सक्यूज बताइए, आपको मंदिर नहीं जाना है या कोई भगवद गीता क्लास में नहीं जाना है, तो आप क्या एक्सक्यूज देंगे? टायर्ड, बहुत थक गया हूँ. हाँ, किसी और दिन आ जाऊंगा. और एक्सक्यूज बताइए प्रभु. हाँ, मुझे सोना है. बहुत अच्छा. और एक एक्सक्यूज बताइए, बहाने बताइए थोड़े. शिफ्ट है. और क्या क्या बहाने? किसी को बोले कि भगवद गीता, हाँ आई नो भगवद गीता,
अच्छा, ठीक है। तो हाँ, मैंने 19 अध्याय पढ़ लिए भगवत गीता के। अच्छा, भगवत गीता में तो 18 अध्याय है, 19वां कहाँ से पढ़ लिया आप? और एक एक्सक्यूज क्या है, हमें सब कुछ मालूम है, हमें भगवत गीता, हमें सब कुछ मालूम है, आई नो एवरीथिंग। ये और एक एक्सक्यूज होता है, कुछ काम नहीं है फिर भी क्या कहते हैं, बहुत बिजी है। और तभी उसको बोलो कि आज एक पार्टी है तो चले जाते हैं तैयार होके, है ना। भगवत गीता में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, भगवान के कार्य में नहीं है इंटरेस्ट। किस में इंटरेस्ट है? दांडिया है तो पूरे घर वाले पैसा टिकट दे के जाएंगे, $20 निकाल के जाएंगे दांडिया पे, लेकिन कहेंगे कि आज भगवान की कथा है, आएंगे? बिल्कुल समय नहीं है। किसी को कहेंगे जब करेंगे भगवान के नाम का, अरे क्या कहें, बहुत बिजी है। लेकिन फेसबुक पे वीडियो 3 घंटा देखेंगे रोज। यस और नो? हाँ या ना? देखिए आज की तारीख में एवरेज स्क्रीन टाइम फॉर अ पर्सन इज अबाउट 3 आवर्स। स्क्रीन टाइम फॉर एवरेज पर्सन इज 3 आवर्स। आई एम आस्किंग, कैन यू चैंट कृष्णा's नेम ओनली फॉर 10 मिनट्स? और किसी ने कर भी दिया तो कहेगा देखो मैंने भगवान का नाम 10 मिनट लिया। अरे क्या उपकार किया आपने? जिसने आपको 24 घंटे दिए उसका नाम आपने 10 मिनट लिया, तो क्या बड़ा काम कर दिया? कोई बड़ा काम नहीं किया आपने, है ना। तो भगवान हमें मौका देते हैं, जैसे यहाँ वानरों को मौका दिया भगवान ने। क्या मौका दिया कि चलिए आप राम नाम लिखिए। स्टोन तो ऐसे भी जरूरत नहीं थी भगवान को, स्टोन की क्या जरूरत थी स्टोन की, कुछ काम नहीं था भगवान, लेकिन मौका दिया भगवान ने वानरों को कि आप राम नाम लिखिए, ऐसे ही फ्लोट हो जाएंगे। तो ऐसे हर एक क्षण लॉर्ड कृष्णा इज गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी, बट द बैड लक इज दैट वी हैव नो टेस्ट फॉर इट, है ना। विच इज बैड लक। इज दैट राइट और रॉन्ग? जैसे भगवान का नाम तो है, क्या नाम है भगवान का? चलिए मंत्र करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इज इट वेरी डिफिकल्ट? राम और कृष्ण का नाम डिफिकल्ट है, लेकिन कितने लोग लेते हैं रोज भगवान का नाम? बहुत कम लोगों को याद आता है भगवान का नाम। क्यों नहीं आता है? तो बोलते हैं क्या, बिजी है, बहुत बिजी है हम। क्या बिजी है? तो सुबह उठ के पहले क्या करेंगे? व्हाट्सअप चेक करेंगे, बिजी है। फिर दूसरा क्या करेंगे? फेसबुक चेक करेंगे, बहुत बिजी है। तीसरा क्या करेंगे? ईमेल चेक करेंगे, बहुत बिजी है। फिर खाना खा के वापस चेक करेंगे फेसबुक, अरे किसी ने क्या पोस्ट डाला है, बिजी है। जीवन में बहाने बहुत बना रहे हैं हम, लेकिन इसका पछतावा कभी होएगा मालूम है? यू विल रिग्रेट दिस व्हेन द टाइम विल कम। जब आपको अंत समय नजदीक आएगा तब मालूम पड़ेगा कि क्या। जब एग्जाम नजदीक आती है तो बच्चों को याद आता है अरे कुछ पढ़ाई नहीं किया, शायद पढ़ाई कर लेते, तो फिर बहुत लेट हो जाता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम बूढ़े हो जाएंगे तभी करेंगे, अभी क्या भगवान के नाम की ज़रूरत है। जो बूढ़े हैं उनको पूछो क्या क्या तकलीफें हैं, उनको सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, बैक एक, जॉइंट पेन्स। एक्चुअली भगवान की भक्ति करने का सही समय है व्हेन यू आर यंग। जब आपके हाथ पैर चलते तभी सेवा कर पाएंगे। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो क्या सेवा करेंगे? कुछ भी नहीं। पूरी जिंदगी अगर आप पैसे कमाने में लगा दी तो वही पैसे आपको डॉक्टर को देने पड़ेंगे। हाँ। लेकिन वही जिंदगी आपने भगवान की सेवा में लगाई तो भगवान आपको उठा लेंगे। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, है ना। तो बहाने बनाना इजी है, हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, बहाने कम और काम ज्यादा, है ना। यस और नो? तो बहाने बहुत बनाते हैं हम लोग और अपने आप को ही चीट करते हैं। एक्चुअली किसी को चीट करना नहीं है, भगवान को क्या जरूरत है, आप याद करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता है उनको। लेकिन भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया है, जैसे भगवान ने बंदरों को अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप नाराम नाम लिखिए।
वैसे ही भगवान ने हमें मनुष्य देह दिया है, और मनुष्य देह का पर्पस क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यता पशु भी समानाम। अगर आप खाने पीने सोने और बच्चे पैदा करने में ही जीवन निकाल देंगे तो ये मनुष्य और पशु पक्षी में कोई फर्क, धर्म ही एक अधिको विशेषो धर्म ही ना पशु भी समानाम। अगर आप भगवान का नाम नहीं ले सकते तो ये पशु के समान ही जीवन है। चाहे जितना भी धन ऐश्वर्य कमा लो, कुछ साथ में नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप भगवान के नाम का स्मरण करेंगे तो आपको भगवान 110%, ये गारंटीड है। मैंने मेरे जीवन में अनेक उदाहरण देखे हैं कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसको यूरिन या स्टूल में निकल जाता है, आंखें खुली रह जाती हैं, लेकिन जब भगवान का भक्त शरीर त्यागता है तो बड़ा शांति से, उसको कोई तकलीफ नहीं होती है। तो जब एग्ज़ाम आती है तभी सब मालूम पड़ता है। इसलिए अभी से ही प्रैक्टिस करें। तो रोज़ भगवान के नाम का स्मरण कम से कम 10 मिनट। अगर 10 मिनट किया तो ऐसा नहीं समझना कि हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। 10 मिनट किया तो फिर 20 मिनट का टारगेट रखिए, है ना। तो जपमाला कितने लोगों के पास है आपके घर में? यहाँ से कितने लोग, हाउ मेनी पीपल हैव जपमाला? हाँ, हाउ मेनी? 2 ओनली 3 पीपल। अच्छा, होने के बाद भी करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा लेके शोकेस पे रख दिया तो नहीं चलेगा। जपमाला करना बहुत ज़रूरी है। भगवान के बहुत सारे नाम हैं। देयर आर मल्टीपल नेम्स ऑफ कृष्णा, बट फॉर कली युगा दिस मंत्र इज रिकमेंडेड। व्हाट इज दैट मंत्र? लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you everyone for your kind participation. हम भगवान रामचंद्र जी को याद करते हैं, और भगवान ने जैसे रावण का वध किया, आज के दिन दशहरा परसों है, हम आज मना रहे हैं, वैसे ही हम भगवान को क्या प्रार्थना करें कि हमारे में भी एक रावण छुपा हुआ है। क्या है हमारे में रावण? काम क्रोध मद मोह अहंकार मात्सर्य। तो ये सब चीज़ें हैं, रावण के 10 सर के समान हैं। जैसे रावण को 10 सर थे, वैसे ही हमारे में भी बहुत सारी खामियां हैं। तो हम भगवान को प्रार्थना करें कि हम आपके नाम का स्मरण करने में समय बिताएं, हो सके उतना, और भगवान की भक्ति और सेवा करें। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? Thank you everyone for joining us. We'll do the आरती and then followed by प्रसादम। प्रसाद लिए बिना कोई भी जाइएगा मत। Everybody please take प्रसादम and then go. Okay? तो आरती के लिए सब आगे आ जाइएगा, हम आरती करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। ऋषि का बेन आवाज? ये तो लाइट बंद कर।
Namaste Paramahamsa Parinitaracharya Dr. Shishma Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Namaste Paramahamsa Parinitaracharya Dr. Shishma Bhaktivedanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai. Namacharya Shridas Thakur Ki Jai. Prabhu Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. श्री श्याम कुंड राधा कुंड विनोदन की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। All Krishna Samagoti Hare Krishna. All Krishna Samagoti Hare Krishna. All Krishna Samagoti Hare Krishna. All Krishna Shri Guru and Gaurang Bhuntai Gaura Premanande Hare. Have a seat for one more minute. एक मिनट के लिए बैठे हम प्रसादम प्रेयर करेंगे. Then we go for prasadam. So the prayer is on the screen. You all will recite together. Mahaprasade Govinde Namo Brahmane Vaishnave Sarva Punyavatan Rajan Vishwaso Naiva Jayate Sharira Vidya Judendriyata Eka Jiva Fele Vishay Sagare Tara Madhe Jivati लोभोमय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण वडो दयामय कोरी बार जीव जाय स्वप्रसाद निधिन भाई से अनामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे दाखो चतनिताय जनिमाय जनिताय की शिल प्रभुपाद की जय. So some important announcement about the upcoming activities, festivals here in the temple. So the most important festival which is coming up is the Diwali festival. After Dussehra, next target is Diwali. So on 12th of November, which is Sunday, we are celebrating Diwali as well as Govardhan Puja. So Diwali is the day when Lord Ramachandra ji returned back to Ayodhya, and Govardhan Puja is the day when Lord Krishna lifted the Govardhan mountain. So we are celebrating both the days on one Sunday, 12th of November. So for the Govardhan Puja, we are going to do Annakut ceremony. Annakut is like we are going to offer 108 plus variety of food items to Krishna. We do it every year. So it is an opportunity आप सबके लिए कि you can make some food for Krishna, very little quantity, like this much only, not too much. And we have a special containers. So you can collect the containers from us, and you can cook any dry items, not items with the gravy. Because what happens is that in transportation, then the gravy will spill over everywhere. So you can make like any farsan, any sweet without gravy, or you can make a salad, rice, different types of rices or fruits, whatever you feel like. It has to come from your heart. You can make any item. The item has to be without onion and garlic, no meat, no fish, no eggs, and while cooking you don't have to taste it. Okay, बिल्कुल टेस्ट नहीं करना. And then you cook it, put it in the container, disposable container. You can take it from the temple, and then you bring the items. You can bring one item, two item, five, as many as you wish. There is no compulsion, but it is just an offering from your behalf to Krishna on the Diwali day. तो आप कोई भी आइटम, एक दो आइटम, पांच आइटम, 10, जितनी भी बनाना चाहते हैं, सिर्फ क्या करना है, ड्राई आइटम बनानी है, ग्रेवी वाला नहीं बनाना है, क्योंकि वो सब स्पिल ओवर करेगा तो सब फिर खराब हो जाएगा आपका सब. हाँ? तो इफ़ यू रियली वांट टू प्रिपेयर, then collect the containers from us anytime from now until the day, and on that particular day you have to bring it before 2 o'clock. On Sunday, for offering you have to bring before 2 o'clock. Don't bring at 6:30, because otherwise it will be too late, because offering will be done by that time. Huh? So if you want to bring it earlier, right? So that is the Diwali day, Govardhan Puja day on the. And then next week is the very important festival starting, which is the Kartik month. Damodar month is starting on 29th of October. पूरे साल में ये बहुत बड़ा पवित्र महीना रहता है. कौन सा महीना? कार्तिक महीना. हाँ, कार्तिक महीना. इसमें ये जो मंथ है, इसमें भगवान की बहुत सारी दिव्य लीलाएं हुई है, इसलिए ये कार्तिक मंथ इज़ वेरी वेरी ऑस्पिशियस मंथ. सो इन दिस मंथ, वॉट एवर द स्पिरिचुअल एक्टिविटी यू डू, यू विल गेट मल्टीपल टाइम्स बेनिफिट. हाँ, तो ये है.
और ये कार्तिक मंथ में एक इसकी महिमा ये है कि ये मंथ में अगर आप भगवान को एक दीप लगाते हैं, दीप दान, जैसे कि आप भगवान को घी का दिया, तो ये महीने में अगर आप रोज भगवान को दीप का दिया लगाएंगे तो इट इज इक्विवेलेंट टू डोनेटिंग काउज, हंड्रेड्स ऑफ काउज इन डोनेशन। उतना फल आपको ये मंथ में मिलता है, सिर्फ घी का दिया लगाना है घर पे आपको। तो भगवान कृष्ण का एक फोटो, भगवान की जो यहाँ पे एक फोटो लगाया हुआ है दामोदर, तो जब यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को दाम यानी रोप से बांध दिया था तो वो लीला कहते हैं दामोदर लीला, ये मंथ में हुई थी। और अनेक लीलाएं हैं, उसका वर्णन हम करेंगे। तो ये मंथ में अगर ये भगवान का जो फोटो है, दामोदर का फोटो या उनकी मूर्ति आप घर में रखिए और दीपदान करिए। और एक प्रेयर है, उसको कहते हैं दामोदर अष्टकम। तो ये मंथ में, जैसे कि ये मंथ चालू होता है 29 अक्टूबर, अगले संडे से लेकर 27 नवंबर तक। तो ये मंथ है, बहुत ऑस्पिशियस मंथ है दामोदर। और ये मंथ में लोग यात्रा को जाते हैं भारतवर्ष में, कभी कोई वृंदावन जाता है, कोई अयोध्या जाता है, कोई कहाँ जाता है। तो यात्रा का भी बहुत महत्व है। तो ये मंथ में हम मंदिर में भी रोज शाम को आपके लिए हम दीपदान यहाँ पे तैयार करेंगे। ऐसे जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे मंदिर में रोज शाम को 7 बजे आप आके दीपदान कर सकते हैं। तो आपके लिए लैंप यहाँ पे रेडी रहेंगे, आप आके भगवान को घी का दिया लगा के आप अपने काम जा सकते हैं। तो ये महीने में रोज दीपदान की बहुत महिमा है। दूसरा, ये मंथ में अगर आप अपने घर में भी अगर कोई कार्तिक दामोदर का मंथ फेस्टिवल करना चाहते हैं, यानी कि आपके घर पे एक छोटा सा शाम को प्रोग्राम रखें और उसमें भगवान की मूर्ति की स्थापना करें या फोटो लगाएं, और ये पूरा कार्तिक का जो प्रोग्राम है हम आपके घर आके कर सकते हैं। हाँ, तो ये भी ये फैसिलिटी है कि आप अपने घर पे एक कार्तिक का प्रोग्राम रखिए, इसमें हम कीर्तन कथा आपके घर आके फिर आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आप अपने स्वजनों को बुला सकते हैं, यू कैन कॉल योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, एनीबडी कैन डू दैट। सो यू लेट मी नो, वी विल कम टू योर होम एंड देन वील डू दिस कार्तिक प्रोग्राम एट योर होम, विच यू विल गेट मल्टीपल टाइम्स बेनिफिट। आपको कुछ दान दक्षिणा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दीप लगाना है, अपने मित्रों को बुलाना है, बोलना है कि बोलिए दीप लगाइए, चलिए हमारे साथ, तो आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो जो आपके मित्र हैं जो दीपदान नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, अपने घर पे एक प्रोग्राम रखिए। समझो अगले महीने में एक दिन आपने अपने घर पे रखा और कहा कि आपके सभी दोस्तों को बुलाया, कहा कि चलिए आज हमारे वहाँ कार्तिक का प्रोग्राम है, मैं आपके घर आऊँगा, हम कीर्तन करेंगे, दीपदान की महिमा करेंगे और सब भगवान को दीपदान करेंगे। तो उसका बेनिफिट क्या है, तो आपको तो बेनिफिट है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको भी उसका बेनिफिट है ना। तो ये कार्तिक महीने में दीपदान की बहुत महिमा है। तो आप जरूर से मंदिर भी आइए, दीपदान भी करिए, अपने घर में भी दीपदान, भगवान को दीप लगाइए, और हो सके तो आपके घर पे भी अपने स्वजनों को बुलाइए, मैं आपके घर आऊँगा और हम उनको दीपदान की महिमा समझाएंगे, ठीक है। उसके व्यतिरिक्त यहाँ पे मंदिर में बहुत सारी सत्संग की व्यवस्था है, जैसे कि हर फ्राइडे को कीर्तन होता है, तो कुछ लोग आते हैं मंदिर में कीर्तन करने के लिए। तो आप हर फ्राइडे को शाम को 7 बजे आरती के बाद कीर्तन रहता है, तो आप जरूर से जुड़िए कीर्तन में। फिर हर सैटरडे को हम यहाँ पे श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो अभी हम फर्स्ट कैंटो पढ़ रहे हैं, तो आप जरूर से जुड़िए, उसमें भी शाम को 5 से 6:30 बजे तक ये भागवतम कथा चलती है। हाँ, उसके ऊपर हर संडे को तो सत्संग रहता ही है, लेकिन संडे को सुबह हमारे मित्र हैं रायन, रायन इज हियर, ही इज a yoga teacher, so he gives yoga classes free of cost, you don't have to pay anything, you can donate whatever you wish, so he can get some help. So every Sunday morning we have a yoga class, right? In addition, temple is open every day morning, तो रोज सुबह 7 बजे आरती होती है। तो ये कार्तिक महीने में एक नियम लीजिए कि ये मंथ में एक दिन तो आप जरूर से आएंगे मॉर्निंग प्रोग्राम में, मंगल आरती में आएंगे। कितने लोग आएंगे सुबह में आरती में 7 बजे? एक महीने में एक ही बार आना है, एक ही बार आना है। चलो जो जो आएगा उसको $100 मिलेगा, तो कितने लोग आएंगे? जो मॉर्निंग प्रोग्राम में 7 बजे आए उसको $100 मिलेगा, कितने लोग आएंगे? चलो $500, अभी अभी सब लोग आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप ये कार्तिक मंथ में एक दिन ऐसा निकालिए, मेहरबानी करके, फिर भगवान आपको याद करते हैं, तो एक दिन क्या करना है,
सुबह 6 बजे उठना है, 6:30 बजे तैयार होना है, 6:45 बजे गाड़ी में बैठना है और 7 बजे यहाँ पे आना है, और 7 से 8:30 बजे तक 1.5 घंटा भगवान के पास रहना है, एक बार करना है, ठीक है। So thank you everyone. Please keep on joining us. And today's feast is sponsored by our friend Gaurav Singh and his friends. Big round of applause to Gaurav and his friends. और कौन कौन है आपके साथ? आपके साथ कौन कौन है और मित्र? ये सब मित्र ही है, पूजा है, डेजी है. तो let's give them a big round of applause and we'll give them a Bhagavad Gita as a gift. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. So आज उन्होंने आज का फीस्ट स्पॉन्सर किया है. तो किस ओकेजन में किया है, ओकेजन नहीं बताया है, लेकिन अगर आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं या फिर कोई एनिवर्सरी है किसका या एनी ऑस्पिशियस एनी ओकेजन, देन यू कैन स्पॉन्सर द फीस्ट. अन्नदान इज द बेस्ट डोनेशन एवर यू गिव. सो टुडेज डोनेशन ऑफ द फीस्ट इज ऑन बिहाफ ऑफ गौरव प्रभु एंड हिज फ्रेंड्स. ही इज अ स्टूडेंट एक्चुअली. देखिए, भी स्टूडेंट के अकाउंट में $500 भी नहीं रहते हैं, उसमें से $350 इन्होंने भगवान को दान किया. यानी 1 लखपति पूरा अपना पूरा कोटा निकाल दे, उसके बराबर दान है ये. तो इसका बहुत महिमा है. हाँ, तो भगवान कभी भक्त को ऐसे सब कुछ नहीं लेते, वो दे देते हैं सब वापस. हाँ, तो ठीक है. थैंक यू गौरव प्रभु, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. सब प्रसाद लीजिएगा और फिर मंदिर में जुड़िएगा. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच.